ভাত নোখোৱাৰ পিছতো ইমান শক্তি আছে না আর ভাত খালে কি হবে এটা ভালো লাগছে আজকে লক্ষ্মীপুরে অতটা ভাল কাজ হয়েছে ভালো লাগছে কি না ভালো লাগছে তো তাহলে কৌশিকের জন্য একটা বড় হাত সাপোর্ট বড় ক্ল্যাপ ঠিক আছে ওনার জন্য সবগুলা হয়েছে ডক্টর রাজদীপ রায়ের জন্য একটা বড় ক্ল্যাপ আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত সম্মানীয় মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়া সাংসদ ৰাজদীপ ৰয় ডাঙৰীয়া পল্লৱলোচন দাস ডাঙৰীয়া লক্ষীপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক কৌশিক ৰয় ডাঙৰীয়া শিলচৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়া উদাৰবন সমষ্টিৰ বিধায়ক মিহিৰ কান্তি সোম ডাঙৰীয়া জিলা আয়ুক্ত ৰোহন জা আমাৰ জিলা বিজেপিৰ সভাপতি বিমলেন্দু ৰয় ডাঙৰীয়া কামৰাট পুৰকায়স্থ ডাঙৰীয়া নিত্যভূষণ দে ডাঙৰীয়া মৃণাল কান্তি দাস ডাঙৰীয়া ৰাজদীপ গোৱালা ডাঙৰীয়া দিলীপ কুমাৰ পাল ডাঙৰীয়া অমৰ চান্দ জৈন ডাঙৰীয়া কিশোৰ নাথ ডাঙৰীয়া বিশ্বৰূপ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া অসম গৌৰৱ মানথাং মাৰ ডাঙৰীয়া আৰু উপস্থিত ৰাইজ আই মাতৃসকল আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ৰাতিপুৱা আমি শিলচৰ মেডিকেল কলেজত গৈছিলোঁ 260 crores rupees খৰচ কৰি আমি খুব ধুনীয়া বৰাকবাসীৰ জন্য একটা ক্যান্সার হসপিটাল তৈরি করেছি সকালে ওইটার শুভ উদ্বোধন হয়ে গেল স্টেট অফ আর্ট মেশিন লাইনাক কোবাল থেরাপি ব্রেকি থেরাপি ইটস এ ইউনিক হসপিটাল এতিয়া কাছাৰৰ মানুহে ক্যান্সার ট্রিটমেন্টৰ কাৰণে বাহিৰত যাব নালাগে সব ট্রিটমেন্ট এখন শিলচর মেডিকেল কলেজে উপলব্ধ হবে অত্যন্ত বড় হসপিটাল ভালো হসপিটাল শিলচৰত 178 crore rupees খৰচ কৰি আমি ওয়াটার সাপ্লাই স্কিমৰো ইনোগ্রেট কৰিম কৰিমগঞ্জলৈকে গলো রামকৃষ্ণ নগৰত খুব ধুনীয়া এটা মেডিকেল কলেজ নিৰ্মাণৰ কাম আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে উইথ 676 crores 670 কোটি টাকা মেডিকেল কলেজ হবে বৰাকের সেকেন্ড মেডিকেল হসপিটাল শিলচর মেডিকেল কলেজ 55 ইয়ার্স আগত হৈছিল আৰু তাৰ মাজত বৰাকত নেক্সট হসপিটাল হোৱা নাছিল আজি বৰাক ভেলিৰ কাৰণে খুব আনন্দৰ দিন যে বৰাক উপত্যকাত আজি সেকেন্ড মেডিকেল কলেজ আমি নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে গৈ আছো শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আজি লক্ষীপুৰৰ বাবে এটা খুব ভাল দিন লক্ষীপুৰ মহকুমাৰ সদৰ সাব ডিভিজনাল হেডকোয়ার্টার কিন্তু আমার কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া হেলথ মিনিস্টার লক্ষীপুরত দিছে কি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল ওর জন্য একটা বড় ক্লাস ঠিক আছে কেশৱ মহন্তৰ জন্য আজি আমি ইয়াতে এই খেলপথাৰতে লক্ষীপুরত আমি এখন ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল নির্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিম আৰু আমি 127 কোটি টাকা এই কামৰ কাৰণে আমি স্যাংশন কৰিছো কি খুব সোনকালে হসপিটাল হৈ যাব কাছাৰত কেবিনেট হৈছিল কেবিনেটৰ ডিসিশন হৈছিল যে এখন নতুন গভর্নমেন্ট কলেজ আমি লক্ষীপুৰত বনাম এখন নতুন গভর্নমেন্ট কলেজ আমি ধলাইত বনাম আজি ইয়াৰ পৰাই আমি দুইখন কলেজৰ ফাউন্ডেশন কৰিছো 35 crores 35 crores আর্টস হব সায়েন্স হব কমার্স হব গভর্নমেন্ট কলেজ হব ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কলেজ আমার লক্ষীপুর আৰু ধলাইত দুখন কলেজ
আজি ইয়াৰ পৰা আমি শুভ উদ্বোধন তাৰ কাজ আমি শুরু করেছি। আমার লক্ষীপুর আর ধলাই সমষ্টি আমি দুটা ডাঙৰ রাস্তার কাম হাতত লৈছো। সেই রাস্তা কেইটা হয়েছে আইজল টু দুয়ারবন পথ, নেক্সট হয়েছে আইরনমারা চাহ বাগিচা টু বৰখালা টি গার্ডেন, আর নেক্সট হয়েছে অঞ্জুর টু অঞ্জুর বিনাকান্দি ফুলেতল রোড। এই তিনিটা রাস্তার বাবে আসাম মালা 2 আঁচনির অধীনত 132 কোটি টাকা স্যাংশন দেওয়া হয়েছে। এখন কাজ শুরু হয়ে যাবে। তার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীপুরের এসডিও অফিস, লক্ষ্মীপুরের কতগুলা ইরিগেশন প্রকল্প, পানি যোগান প্রকল্প সব মিলিয়া টোটাল আজি 2000 কোটি টাকার প্রজেক্ট বরাক ভেলির কারণে ইয়াতে আজি আমি আরম্ভ কৰিছো। ইমান ডাঙৰ কাম বরাক ভেলির জীবনত কেতিয়াও হোৱা নাই। মইতো আজি 20 বছর एमएलए आसो, अभी तक हम 20 साल मेरा एमएलए हो चुका है। मैंने कभी नहीं देखा था कि बराक वैली के लिए 2000 करोड़ का काम का शुरुआत एक ही दिन में एक ही मंथ से, और ये तो शुरुआत है। এতিয়া আমি এইটো চেষ্টা কৰি আছো যে আমাৰ বৰাক ভেলীৰ হাই স্কুল বিলাক পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়াই কৈছে যে বরাক ভেলিত আমি অলমোস্ট 30 নতুন আমি হাই স্কুলের বিল্ডিং বনাম। একটা হাই স্কুল বিল্ডিংত আমি 8 কোটি টাকা খরচ করি। 8 কোটি টাকা খরচা হবে এক স্কুলের জন্য, হাই স্কুলের জন্য। কালি বা পরশির পিছত পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়াই তার ফাউন্ডেশন করল। অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্র, মডেল অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্র, জল জীবন মিশন আদি বরাক ভেলিত যিবিলাক কাম আমি আরম্ভ কৰিছো, এই কাম আগত কোনেও চিন্তাও কৰা নাছিল। আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ 52খন এম্বুলেন্স টি গার্ডেনের কারণেও আজি আমি ইয়াতে দিছো যে 52খন টি স্টেটৰ কাৰণে 52খন এম্বুলেন্সও আজি আমি ইয়াতে গতাই দিছো বাগানৰ মেনেজাৰ সকলক, যে বাগানৰ শ্রমিক সকলক আমি যাতে ভাল কৰি এই কাম, এই মেডিকেল ফেসিলিটি আমি দিব পাৰো। আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত যিমান কাম হৈছে, বরাক ভেলীত ইমান কাম হৈছে, বরাক ভেলীত যিমান কাম হৈছে, কাৰ্বি আংলং নৰ্থ কাছাৰ জিলাত ইমান কাম হৈছে। আজি অসমত কোনো এটা জায়গা নাই য'ত ডেভেলপমেন্ট হোৱা নাই। আৰু কিমান দিনৰ ভিতৰত এই কামবোৰ হৈছে? 2 বছৰ 2.5 বছৰৰ ভিতৰত আজি এই গোটেই কামবিলাক ধুনীয়াকৈ আমি কৰিছো, আমি আগুৱাই লৈ গৈছো। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল। আজি বৰাক ভেলীৰ মানুহক মই এটা কথা ক'ব খুজিছো যে 2026 চনৰ আগতে আমি শিলচৰৰ পৰা হাফলঙেদি যোৱা আমি ন্যাশনাল হাইৱে আমি ইনোগ্ৰেশন কৰিম। এইটো মোদী গ্যাৰেণ্টি, 100% মোদী গ্যাৰেণ্টি। আজি আপোনালোকে গলে দেখিব দিনে ৰাতিয়ে কাম হৈ আছে। एवरी डे कंस्ट्रक्शन, एकदम धूम कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कोई बाधा नहीं, कोई आपत्ति नहीं, सब लोगों ने हम लोग को कोऑपरेट कर रहा है। और ये मोदी जी का गारंटी है कि 2026 सन का पहले हम लोग हाफलंग होते हुए गुवाहाटी पहुंचेगा। ये हम लोग का गारंटी है, मोदी जी का गारंटी है। इतना बड़ा काम बराक वैली में कभी नहीं हुआ। आप लोग को मैं निवेदन करूंगा कि एक बार आज जो हम लोग इनोग्रेट किया है कासार कैंसर हॉस्पिटल, आप लोगों को देखना चाहिए। किसी को कैंसर नहीं होना चाहिए। हम तो भगवान को बोलूंगा कि किसी को कैंसर ना हो, लेकिन इतना बढ़िया मशीन, इतना बढ़िया बिल्डिंग बराक वैली में और दूसरा कभी नहीं हुआ था। इससे ज्यादा बढ़िया हॉस्पिटल आगे बना ही नहीं था। अभी मैंने
करीमगंज में हमारा नया मेडिकल कॉलेज का मैंने एक फिल्म दिखाया था। वो मेडिकल कॉलेज है कि फिल्म स्टूडियो है, दिखाई कोई डिफरेंस ही नहीं दिखता है। इतना बढ़िया मेडिकल कॉलेज होने जा रहा है। और मेरा तो इतना भी मन है, अगर भगवान हमें शक्ति दे तो बराक वैली में 2 के जगह में और एक मेडिकल कॉलेज बनाने का भी मेरा मन है। आज लखीमपुर में देखिए कितना काम हो गया। जब मैंने यहां पहला बार आया था, कौशिक जी मुझको बोला था हॉस्पिटल दीजिए, सब डिविजनल हेडक्वार्टर दीजिए, लेकिन साथ में कॉलेज भी आप लोग को तोहफा में मिल गया। साथ में आप लोगों को और कितना आसाम मलक्का रास्ते वगैरह कितना मिल चुका है। एक शब्द को बोलते गले এখন विकासर बन्या বয়েছে। पहले तो ब्रह्मपुत्र का फ्लड था, बराक का फ्लड था, अभी डेवलपमेंट का फ्लड हो रहा है देश में। हमारा जीवन में इतना बढ़िया समय हमने कभी नहीं देखा था। और सब कुछ काम क्यों हो रहा है? एक ही व्यक्ति के लिए हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी के लिए ये सारा काम हो रहा है। और राम मंदिर तो हो ही गया प्राण प्रतिष्ठा। जाना है कि नहीं अयोध्या में राम मंदिर दर्शन करना? किसको किसको जाना है हाथ उठाइए। सब कौशिक सबको फ्री लेके जाएगा, ठीक है। इस साल हम लोग 50,000 यात्री को लेके जाएगा अयोध्या का राम मंदिर में, सरकारी खर्चा में। लखीमपुर का तो 1-2 हजार जाएगा ही जाएगा। राम मंदिर देखने का मन है कि नहीं सबका? किसका किसका नहीं है हाथ उठाइए। किसका किसका मन इच्छा है वो हाथ उठाइए अभी। तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं? और एक बार है कि नहीं? तो इसलिए ये जो आज डेवलपमेंट का काम हो रहा है ना, अगर नरेंद्र मोदी अगर नहीं 700 पार करके प्रधानमंत्री बनना ही है, उसका बाद असम का और बहुत बड़ा विकास होगा। अभी कौशिक जी मुझको बोल रहा था कि ये जगह में एक बढ़िया स्टेडियम बना दीजिए, डिस्ट्रिक्ट स्टेडियम। तो मैं बोला थोड़ा इंतजार करो, मोदी जी को तीसरा बार शपथ लेने दो, फिर उसका भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। आज हम लोग का हिम्मत बुलंद है। कल आप लोगों ने कैबिनेट में सुना है, असम के लिए 27,000 करोड़ रुपया का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। 30,000 लोगों का नियुक्ति होगा। इतना बड़ा काम असम कल्पना भी नहीं कर सकता था, इतना बड़ा काम हुआ। और आज देखिए, आज 3 साल आप लोग देखिए, कोई बराक ब्रह्मपुत्र का बीच में कोई झगड़ा नहीं है, कोई बंगाली असमिया का क्लैश नहीं है, हिंदी भाषी बंगाली असमिया का क्लैश नहीं है। अभी हम लोग बहुत शांति से मणिपुरी को भी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। मणिपुरी लोगों का मन में ये इच्छा था बहुत दिन से, हम समय देख रहा था, अभी समय आ गया और साथ साथ में ऑफिशियल लैंग्वेज भी कर दिया हमारा मणिपुरी भाई बहन लोगों के लिए। इस बार कौशिक को वोट तो डालेगा ना मणिपुरी लोग? डालेगा कि नहीं डालेगा? डालना तो सही है। इसलिए कौशिक ने मुझको बोलते ही रहा कि दादा कीजिए कीजिए कीजिए। कौशिक के लिए मोटा मोटी ये काम हुआ है। तो एक तरफ आप लोग देखें इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास है बन्या, और साथ साथ में गरीबों का खिलाफ नहीं, पॉवर्टी का खिलाफ कितना बड़ा काम शुरू हुआ है असम में। चुनाव का पहले हम लोग चर्चा किया था कि 1 लाख सरकारी नियुक्ति दिया जाएगा, तो लोगों ने तो हमको विश्वास ही नहीं किया, और हमारा पार्टी का लोग ही मुझको विश्वास नहीं किया कि कैसे 1 लाख नौकरी संभव होगा। लेकिन आज हमने करके दिखाया, और नौकरी ही नहीं दिया,
साथ में दलाल लोगों को भी शमशान में भेज दिया। चलो तुम लोग का कुछ काम नहीं है, आसाम में दलाली नहीं होगा। तो अभी 97,000 नौकरी हो गया, फिर मेरा तो काम खत्म 3,000 देने से। लेकिन फिर लड़का लड़की लोग पूछते दादा पुलिस का इंटरव्यू कब निकालेगा, कब निकालेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने और 25,000 नौकरी का इंटरव्यू खोल दिया है। चलो और काम करो, और नौकरी भी दूंगा, और काम करो। आसाम में सब लोग स्कूल में जाना चाहिए, कॉलेज में जाना चाहिए, एक अच्छा विकास का माहौल बनना चाहिए। आसाम एक भालो परिवेश, मिलाप्रीतिर परिवेश, समन्वयर परिवेश। आज आप लोग देखिए आसाम को कितना खूबसूरत लगता है। अभी कोई झगड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई गरीबों का सुनवाई होता है। अभी तो इतना बढ़िया एक स्थिति हमारा आसाम में बन चुका है। भाइयों और बहनों, हम जब अरुणोदय आसनी का बात किया था, स्कीम का बात किया था, तो लोग बोला था नहीं चुनाव का बाद ये सब बंद हो जाएगा। चुनाव का पहले कितना अरुणोदय था? 18 लाख। बंद तो नहीं हुआ, अभी अरुणोदय 27 लाख बन गया। और इस बार हमने और 3 लाख अरुणोदय अनाउंस किया हो, आलू 3 लाख मांग रहे अरुणोदय का। लेकिन मेरा मन है कि जिसका घर में रेशन कार्ड है, हर घर में एक एक अरुणोदय भी होना चाहिए। मतलब किसका अरुणोदय है? रेशन कार्ड जिसका घर में है। रेशन कार्ड किसका है? जिसका घर में अरुणोदय है। और साथ साथ में रेशन कार्ड भी होगा, अरुणोदय भी होगा, साथ साथ में प्रधानमंत्री का आयुष्मान भारत भी होगा, मुख्यमंत्री का आयुष्मान असम भी होगा। 5 लाख रुपया तक हमारा ट्रीटमेंट फ्री रहेगा। और एतिया मैं चिंता करी आसु जे रेशन कार्ड, अरुणोदय, आयुष्मान भारत लगत आमार हेड ऑफ द फैमिलीर इन्सुरेंस। যদি আমার হেড অফ দা ফ্যামিলির মানুহৰ এক্সিডেন্ট হয়, কিবা হয়, ডেথ হয়, আমি ইন্স্যুরেন্সৰ টকাও পাই যাম। প্রিমিয়াম পাব্লিকে দিব নালাগে, প্রিমিয়াম সরকারে দিব। লগত উজ্জ্বলা গেছ হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে ৰেচন কাৰ্ড হল, অৰুণোদয় হল, উজ্জ্বলা গেছ হল, ইন্স্যুরেন্স হল, লগত সোলার প্যানেল। সোলার প্যানেল হলে কি হ'ব? ঘৰত আমি 300 ইউনিট পাৱাৰ আমি ফ্ৰী আমি সোলাৰৰ জৰিয়তে আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰিম। 300 यूनिट पावर सोलर से आएगा। हमारा घर में खर्चा होता है 200 यूनिट। 100 यूनिट हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को हम सेल भी कर पाएंगे। ये भी एक स्कीम अभी मोदी जी बोल के गया है गुवाहाटी में। 80 लाख लोग ये 10 साल में गरीबों का सीमा रेखा से बाहर आ चुका है। आज असम में दलाली बंद हो गया है। आज असम में सरकारी ऑफिस में काम करना इजी हो चुका है और गरीबों का सुनवाई होता है। ये सबसे बड़ा बात। आज आप लोग देखिए, लोग तो ऐसे बोलते हैं वो करेगा वो करेगा। कांग्रेस का समय में बोला था 1000 करोड़ हम लोग बराक वैली को दूंगा। अभी किसी ने देखा नहीं है 1000 करोड़ कहां गया। लेकिन हम लोग जो काम करता हूं वो दिखाई देता है। फाउंडेशन भी हम लोग करता हो और इनॉग्रेशन भी हम ही लोग करेंगे। जैसे हमारा शहीद नंदन सिंह का नाम में ब्रिज बना, मैंने फाउंडेशन किया था और आज इनॉग्रेशन भी हो गया। साथ साथ में फाउंडेशन होगा भी, इनॉग्रेशन भी होगा। आज कॉलेज का फाउंडेशन हुआ, इसका इनॉग्रेशन भी हमारे हाथ में होगा। मतलब एक नया पॉलिटिकल कल्चर हम लोग असम में शुरू किया। अभी मैंने और एक नया स्कीम लेके आया हूं। जैसे आप लोग मैट्रिक का जब रिजल्ट देते हैं, मैट्रिक और रिजल्ट दिया पढ़े कि देखा जाए 50% गर्ल्स, 50% बॉयज। কিন্তু কলেজত যেতিয়া এডমিশন হয়, ছোৱালী কম এডমিশন হয়, ল'ৰা বেছি এডমিশন হয়। কিয় হয়?
कारण देउताक माके कलेजत लड़ा छोৱালী पठाब नखोजे। मैं कैसिलो फ्री एडमिशन आछे किय नपठाय बोले फ्री एडमिशन तो आछे किन्तु कलेजत गले तो खरच लागे हेतु सचा कथा। এইবাर आमी सिद्धांत लैसु हम लोग ने निर्णय किया हो जो भी मेरा बेटी मैट्रिक पास करेगा उनको कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद उनका बैंक अकाउंट में हम 10,000 रुपया डाल देंगे और जो हायर सेकेंडरी से डिग्री जाएगा उनको 12,500 और जो पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ेगा उनको 15,000। तो एक लड़का ने पूछा मुझको कि दादा हमारा लड़का लोगों के लिए नहीं है क्या? हम बोला नहीं तुम लोग का लिए भी है, लेकिन हम लोग लड़की का पेट से जन्म हुआ होना तो पहले लड़की का काम करना चाहिए। कोई है क्या लड़का का पेट से जन्म लेने वाला? आशा नहीं की कुंभा ना থাকিব পাৰে নেকি দুই এটা নাই। তো সেইকাৰণে ছোৱালীৰ পঢ়াৰ ৰিস্কটো আমি লৈছো যাতে বাপেক মাকে লৰাক পঢ়াব পাৰে আৰু ছোৱালীক চৰকাৰে পঢ়াব পাৰে। এতিয়া আমি আৰু এটা আইডিয়া কৰি আছো कि हमारा माँ लाखपति बनाना लगे। हमारा माँ और बहन लोगों को लाखपति बनाना चाहिए। तो बोला कैसे बनेगा लाखपति? हम लोग शुरुआत किया हो, अभी सबको हम लोगों ने फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया। आप लोग लिया कि नहीं फॉर्म? तो ये बेटा कहां से लिया? मां लेना पड़ेगा, बहन लेना पड़ेगा। ये फॉर्म अभी काल से आप लोगों को जमा देना है 7 तारीख तक। 2 से 7 तारीख फॉर्म आप लोग जमा करिएगा। जमा करने का बाद आप लोगों का बैंक अकाउंट में हम टिपिंग करके 10,000 रुपया भरा देगा, ठीक है? फिर आप लोग 10,000 करके क्या करेगा? हस्बैंड को दे देगा, तो झमेला खत्म। लेकिन मैं इस बार बोला हूं हस्बैंड लोगों को और 10,000 रुपया मत लीजिए। मुर्गी को मार देने से अंडा कहां से निकालेगा? तो ये 10,000 रुपया मिलने का बाद जो लोग अच्छा काम करेगा उनको सरकार दोबारा 25,000 रुपया देगा और एक बार 25,000 रुपया देगा। 12,500 आप लोगों को ऐसे मिलेगा, 12,500 बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा। और अगर 25,000 पूंजी लेके हम लोग काम करता हो, हम लोग जरूर 3 साल में लाखपति बन जाओगे। और जो लोग नहीं बनेगा ये लोगों को एक्स्ट्रा 10-20 हजार में दोबारा दे दूंगा, ठीक है? लेकिन बनाना है हमारा मां लोगों को लाखपति। ये भी हम लोगों ने संकल्प लिया। बेटी को करने में स्कूटी देना, कॉलेज में एडमिशन फ्री करना, 42 लाख लोगों को रेशन कार्ड देना, 30 लाख लोगों को अरुणोदय देना, 2,85,00,000 लोगों को फ्री राइस देना, आयुष्मान भारत, आयुष्मान असम देना। एक तरफ हम लोग विकास का काम कर रहा हो और एक तरफ हम लोग गरीबों से भी जूझ रहा हूं कि गरीब देश में होना नहीं चाहिए, असम में नहीं होना चाहिए। दरिद्रतार बिरुद्धे युद्ध और विकासर बानपानी। আজি আমি অসমখনক সুন্দৰ কৰি আগুৱাই আগুৱাই লৈ গৈ আছো আৰু মানুহৰ মাজত মিলা প্ৰীতি। ক্ৰাইম কমিছে, দালাল কমিছে, সুদখোৰ কমিছে, চাইল্ড মেৰেজ বন্ধ হৈছে, বাল্য বিবাহ বন্ধ হৈছে, বাচ্চা মেয়েদের বিয়া দেওয়ার কাজটা মোটামুটি একটা ফিনিশিং রাস্তায় চলে গিয়েছে। এখন 2 साल में कितना कुछ हो गया हमारा असम में, आप लोग एक बार खुद सोचिए। खाली 2 साल में अगर ऐसा ही 2 साल हम लोग को और 10 साल मिल जाते हैं ना, असम भारत का नंबर 1 प्रदेश बन जाएगा। ये भी हम लोग गारंटी से बोल सकते हैं। अगर यही 2 साल और 10 साल चलते हैं तो तब तक हमारा कसार में नया एयरपोर्ट भी बन जाएगा,
हाफलंग का रास्ता भी खुल जाएगा, स्कूल डॉन बॉस्को सेंट मेरी जैसा हो जाएगा, आंगनबाड़ी कैंप बढ़िया हो जाएगा, सब लोगों का घर में इंश्योरेंस हो जाएगा, अरुणोदय हो जाएगा, रेशन कार्ड हो जाएगा, महिला लोग लाखपति बन जाएगा। इतना काम पूरा हम लोग कर सकूंगा अगर ऐसा ही बढ़िया 2 साल कम से कम आगे और हम लोग को थोड़े दिन मिल जाते हैं। तो मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा, ये हमारा विकास का राजनीति चलते रहे, असम शांति में रहे, हमारा बड़ा ब्रह्मपुत्र का बीच में भाईचारा बने रहे, हमारा बंगाली स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग, असमी स्पीकिंग, मणिपुरी स्पीकिंग सारे लोगों का बीच में भाईचारा बने रहे। इसीलिए हम लोगों का माइंडसेट सबका पॉजिटिव होना चाहिए। जो लोगों का माइंडसेट पॉजिटिव होता है वही देश विश्व गुरु बन सकता है। मोदी जी हमारा देश को पॉजिटिव बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये कांग्रेसी लोगों ने हमारा देश को निगेटिव करवा दिया था कि कुछ संभव नहीं, नौकरी लेना है तो पैसा देना पड़ेगा, सरकारी स्कीम लेना है तो नौकरशाही का पास जाना पड़ेगा, कोई डेवलपमेंट नाम का कोई चीज नहीं है। लेकिन मोदी जी ने आज हम सब लोगों का माइंडसेट पॉजिटिव किया है और ये पॉजिटिव माइंडसेट को लेके हमको आगे जाना है और असम को हमारा देश का नंबर 1 प्रदेश बनाना है। यही हमारा संकल्प होना चाहिए। আজি এটা সুন্দৰ দিন বৰাক উপত্যকাৰ কাৰণে আৰু বৰাক উপত্যকাৰ ৰাইজক মই বহুত আজিৰ দিনটোত অভিনন্দন জনাইছো, ধন্যবাদ জনাইছো আৰু বৰাক উপত্যকাৰ বিকাশৰ কাৰণে ভৱিষ্যতেও কাম কৰি যোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মই আপোনালোকক প্ৰদান কৰিছো। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, কেইদিনমান পিছতে ইলেকশ্যন আহিব, मोदी जी आको देशर प्रधानमंत्री हम और आज आम जी तक दुगुण तीनिगुण काम आगत गई आम बेसिक विश्वासो मोर अंतरत आछे। श्रद्धार राइज, कौशिक रॉय डांगरियाई मोक কৈছে যে ইয়াত এটা डिस्ट्रिक्ट स्टेडियम लागे, এটা ऑडिटोरियम लागे, रवींद्र भवन लागे लखीमपुरत, एक इंडस्ट्रियल स्टेट लागे और একটা আমার ইয়াতে সার্কিট হাউস লাগে। এটা মই দিব নোৱাৰো, লক্ষীপুৰৰ মানুহে এটো লব লাগিব। কেনেকে লব লাগিব? এই যে এমপি ইলেকশন আহি আছে তাতে টপা কমলৰ চিনত ভোট দি লব লাগিব। হ'ব নে নাই? হ'ব কি নাই? ডাঙৰ কৰি ক'ব লাগিব। হ'ব নে নাই? হবে কি না? সেইটো হৈ গলে বাকি হৈ যাব। গাড়ীৰ ডিজেল পেট্ৰল থাকিলে গাড়ী দৌৰি থাকিব, হয় নে নহয়? গাড়ীৰ ডিজেল পেট্ৰল লাগে, গাড়ীৰ ডিজেল পেট্ৰল হলে গাড়ী ধুনীয়াকৈ চলি থাকিব। মই পুনৰ এবাৰ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো। আজি আমাৰ মাজত বৰাক উপত্যকাৰ আটাইকেইজন বিধায়ক উপস্থিত আছে, সাংসদ উপস্থিত আছে। তেখেতসকলৰ যত্নৰ কাৰণে আজি আমি বৰাক উপত্যকাত উন্নয়নৰ এটা নতুন কৰ্মযজ্ঞ আৰম্ভ কৰিব পাৰিছো। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিব, আপোনালোকে সহায় কৰিব। মই যাতে মোৰ যিমান সামৰ্থ্য আছে মোদীজীৰ আশীৰ্বাদত মই যাতে বৰাক উপত্যকাৰ কাৰণে আৰু কাম কৰিব পাৰো, বৰাক উপত্যকাক আৰু যাতে আগুৱাই লৈ যাব পাৰো। এই দুআষাৰ কৈ মই আপোনালোকক আজিৰ এই সুন্দৰ দিনটো পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো। মোৰ লগত আকৌ এবাৰ ক'ব, আমাৰ সঙ্গে ফিर एक बार भारत माता के, भारत माता के जय जय श्री राम, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।